Assalamu alaikum viewers. My name is Saifullah bin Zarshed and you're watching Hazara.com.pk. Viewers, we are here at Aptabad Public School and the Aptabad Old Boys Association reunion is going to be held today in the college. So we'll give you the complete coverage. Aptabad Old Boys Association is having this reunion after very long, a couple of years, and they're quite excited. They were waiting due to certain reasons. The program of annual reunion was being delayed from 2006 onwards, and now in 2012 it has been arranged. So we will give you the complete coverage, and there are a lot of events today. Cricket match, there's a swimming, there is a tug of war, a sack race, and cycling, and lunch and stuff like that. So, and in the end there will be the prize distribution ceremony, and the program is starting at 10 o'clock with the assembly. So all of the Abertonians are getting together to attend the assembly to re-memorize their memories of being a student, what they've enjoyed as Abertonian when during their tenure. So let's go and enjoy. To God, to my country, and to my fellow human beings, and shall obey all the rules and regulations of this institution. I shall honor my parents, teachers, and elders, and be good to those who are younger than me. I shall do the best that I can to help all the people who are old, poor, crippled, or in distress. Every day I shall do at least one good deed that will please a fellow human being without distinction of country, class, color, or creed. I should try to make the school tradition, discipline and hard work, and the school motto, character is destiny, part and parcel of my life. President CGP Ayoba, office bearers of the rest of the chapters, representatives of Lahore chapter, Mr. Anand Vakil Khoka, with an abbreviation KWK, that is King Without Kingdom, and Mr. Hassan Nasiruddin Ansari, ABS alumni, worthy faculty members, and the young Abertonians. The whole day, today's program is quite hectic, but very well organized. It's a unique one. It will be comprising of few events outside and few events inside. The outdoor events would be meant for the gents. The indoor events would be meant for the Ayoba Ladies Club. As far as the outdoor activities are concerned as per program, first of all, there will be a cricket match between Alumni 11 and APS 11. When it is over, then there will be a lunch. Then there will be a break, and after that, the break, there will be an English
skit to be presented by ATS. Ladies and gents will sit in the Masroor Hall and watch the script, English script. Then again outside, events would be outside on the swimming pool. After that, on the main field, and there would be few that is events. Ladies will continue their engagements inside. The most important thing of today's event is that of the children of 12 age and below, 12 years and below. So they will be kept busy in 2 or 3 classrooms in order to make sketches and drawing and all that, because fathers would be on the field, mothers would be inside the hall. So they are required to be kept busy so that they do not disturb their parents. So in this way, the whole day events will come to an end by 5 or 6 o'clock. So hopefully these events would be quite enjoyable, and we will enjoy all that. So I hereby declare the whole day's events open. Thank you very much, sir. इतने ऐसे में कितना कम लगता है। बाप कहीं बाहर बिजी रहे, अम्मा कहीं अंदर बिजी रही, और हम जैसे बच्चे एप्टबाद पब्लिक स्कूल में बिजी रहे। May I request the principal to unflutter the Abiturians' color. When the colors goes up, the band will have its tune, and we'll have a hip hop. Sir. अपर एज लिया और उस्मान बॉलिंग पे लंबे रनअप के साथ आए बॉल की, और ये बॉल खालिद खोकर साहब फरमा रहे हैं कि और ये अगली गेम हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में कर्नल अमजद साहब तशरीफ रखते हैं। कर्नल अमजद साहब जो है अच्छा मौसम वो 6 स्कोर होगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं लग रहा कि ये टारगेट अचीव कर सकेगी, क्योंकि बॉलिंग का मेयार काफी अच्छा है। और बहुत अच्छे 1 ओवर में 2 विकेट के लिए उस्मान ने तबाहकुन बॉलिंग की है। पहली बॉल थी और ये एक अच्छा शॉट था। करूंगा कि कुछ अपने एक्सपर्ट कमेंट नहीं, बॉल जो थी सीधी जा रही थी कब्रिस्तान की तरफ, आपको याद हो जुमरात आप पराठे खाया करते थे। एक और कमेंट होगा, लेकिन एक तीसरी विकेट गिर गई है। He's falling for his favorite shot. बहुत ही रिप्ले है दिखाना या मैं देखा नहीं। Shot Friedman, in fact a flying slip, and the fielder was stationed
अगर बॉलिंग की तरफ देखें तो उस्मान और दूसरे जो हमारे बॉलर्स थे, एक ने 4 विकेटें ली, एक ने 3 विकेटें ली, अब्दुर्रहमान ने। और आई थिंक ये बहुत अच्छा मैच हुआ है उस लिहाज से देखा जाए कि एक तो ये कि APS का जो ग्राउंड है, मैंने बहुत क्रिकेट खेली है, नॉट इन पाकिस्तान, ऑल्सो अब्रॉड, लेकिन ये जो ग्राउंड है, इस जैसा ग्राउंड मेरा ख्याल है मैंने कभी नहीं देखा। और जो प्लेइंग कंडीशन है, जो एनवायरनमेंट है इस ग्राउंड की, वो वाकई, और अब माशाल्लाह PCB ने भी इसको टेक ओवर कर लिया है। आप देखें कि साइड स्क्रीन्स की इंप्रूवमेंट आ गई है। मुझे बताया गया कि इस पर पूरा ग्रास लगेगा। तो ओवरऑल बहुत अच्छा मैच गया है। और जो टीम थी हमारी, ज़ाहिर है सब मुख्तलिफ इलाकों से भी लोग आए थे, लेकिन जिस तरह टीम ने जल किया है और जिस तरह परफॉर्म किया है, आई थिंक हमने बहुत यंग टीम को हराया है। आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ग्रेट सर। सर आप अयोबा के एक और अपॉइंटमेंट होल्डर भी हैं, सो काइंडली ज़रा उसके बारे में बताएं, और अयोबा की जो एफर्ट्स हैं इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में, तो उसको अपने लेवल पे शेयर करें सर। जी, अयोबा एबटाबाद चैप्टर तकरीबन 1980 से शुरू हुआ था। इट केम इनटू इंसेप्शन इन अराउंड अर्ली 80s, और उसके बाद से अयोबा की बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। अयोबा का एक प्रोजेक्ट है जो एबटाबाद का है, उसमें एबटोनीज़ मेडिकल एसोसिएशन है, जिसके चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ वान हैं। मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ, और बहुत सारे लोग जो लोकल हैं यहाँ एबटाबाद के बड़े सीनियर एबटोनियंस उसको हेड कर रहे हैं। तो अयोबा एबटाबाद का जो ताल्लुक है वो तकरीबन ये हमने 1-2 महीने में अपने आप को रीऑर्गेनाइज़ किया है। मुझे ज़िम्मेदारी गई थी प्रेसिडेंट बनने की, लेकिन वो मैंने सिर्फ इसलिए कबूल की कि मुझे जो टीम ऑफ़र की गई थी, बड़े यंग एबटोनियंस और इतने टैलेंटेड एबटोनियंस थे कि उसको देखते हुए मैं मना नहीं कर सका। ये तकरीबन 1 महीने की काविश थी कि इतना बड़ा फंक्शन, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तकरीबन 400-500 लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन कल के रात के फंक्शन के जो फिगर्स हमें मौसूल हो रहे हैं वो तकरीबन 1200 से ऊपर लोग हैं। 1200 लोगों का यहाँ आना पूरे पाकिस्तान से, और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि अमेरिका से और दूसरे ममालिक से भी एबटोनियंस के यहाँ आना, इस बात की तस्दीक करता है कि बहुत बड़ा इवेंट हुआ है APS की हिस्ट्री में। कुछ बातें मैं एबटोनीज़ मेडिकल एसोसिएशन के हवाले से करना चाहूँगा कि जिस तरह कराची चैप्टर, हमारे मुख्तलिफ बड़े शहरों में चैप्टर्स हैं, लाहौर चैप्टर, इस्लामाबाद चैप्टर, कराची चैप्टर। तो सारे चैप्टर्स वैसे तो बहुत मदद करते हैं एबटोनीज़ मेडिकल एसोसिएशन की, लेकिन कराची के चैप्टर ने जिस तरह हमारी हेल्प की है कि एक हम ब्लड सेंटर चला रहे हैं अवान प्लाजा में, जो कि 1996 से चल रहा है। इसी तरह आई सेंटर चल रहा है। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। इसमें हम फ्री मेडिकल कैंप्स करते हैं, और अभी HCP ने एक रिसेंटली हमारा एक इवेंट कवर किया था 2 जून को, ब्लड डोनर्स का हमने एक डोनेशन कैंप किया था। तो आई थिंक ये जो एसोसिएशन है, ये सिर्फ ये नहीं कि मिलने बैठे और गपशप लगाई, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव जो हमने बनाया है कि वो हम इंसानियत की खिदमत भी करें, और उसका बेहतर जो सबसे प्लेटफॉर्म में मिला है वो एबटोनीज़ मेडिकल एसोसिएशन है। और आई थिंक ये बहुत बड़ा इवेंट है और आपको पता ही है कि तकरीबन 50 साल हमारे गुजर चुके हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो हमारा होगा वो गोल्डन जुबली ऑफिशियली हम सेलिब्रेट करेंगे। कुछ वजूहत थी जो कि जिसकी वजह से इस दफ़ा नहीं सेलिब्रेट हुई, लेकिन नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह, क्योंकि अभी तो हमें 1 महीने की तैयारी थी, अब हमारे पास 1 साल की तैयारी होगी इंशाल्लाह, और जो नेक्स्ट इवेंट होगा वो बहुत ग्रैंड इवेंट होगा, उसको इंटरनेशनल इवेंट बनाने की कोशिश करेंगे हम। होंगे कमिंग बैक टू द एज व्हेन यू वर अ स्टूडेंट हियर, so the stories or the something you want to share with us or something. शायद कम लोग जानते होंगे, मेरे फादर यहाँ प्रिंसिपल रिटायर थे माजिद सिद्दीकी। मेरी पैदाइश तो कराची की थी, लेकिन 1961 में जब मैं पैदा हुआ तो यहाँ मुझे लाया गया, और उस वक्त से मेरी यादें यहाँ 85 तक मौजूद हैं। ये स्विमिंग पूल आप देख रहे हैं, यहाँ हमने स्विमिंग सीखी, ऊपर टेनिस कोर्ट्स हैं, यही ग्राउंड्स थे जिसमें मिस्टर कैचपोल जैसे टीचर्स और कोच ने हमें कोचिंग दी। और हमारे साथी में बहुत ही सीनियर कुछ लोग तो ज़ाहिर अब इस दुनिया में नहीं रहे, अमीन साहब हो गए, मसरूर साहब हो गए। तो इस इदारे ने जिस तरह हमारे हर जगह तालीम तो मिलती है आपको, लेकिन इस इदारे ने जिस तरह हमें तरबियत दी है तो वो हमें औरों से बिल्कुल मुनफरद कर देती है। तो आई थिंक एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, एक बहुत बड़ा इदारा है, और इससे वाबस्ता जो यादें हैं वो तो इतनी हैं कि अगर उस पर बात की जाए बहुत होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इतना बड़ा फंक्शन, इतना इसमें जो लोग जिस तरह पार्टिसिपेट हुए हैं, जिस तरह कि उन्होंने किया है, आई थिंक ये बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन बन जाएगी। और पाकिस्तान में बहुत सारे
तलबा की तंजीमें काम कर रही हैं, लेकिन एयोबा का अगर आप किसी भी उसे कंपैरिजन करें तो आई थिंक बहुत डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत ज़्यादा इसमें ब्रदरहुड है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार मोहब्बत है, और आई थिंक और देखें जो फैमिली जो एक आप देखिए पूरे फैमिलीज़ का एक फंक्शन चल रहा है, तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत कम एसोसिएशन में एलुमनाई देखने आती हैं। तो आई होप कि ये इदारा और तरक्की करेगा और हमारा इसमें पूरा तावन रहेगा। और आपको पता है कि एबटाबाद से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पास आउट हो रहे हैं और एक बहुत बड़ी तादाद यंग लोगों की वो यहाँ से पास आउट होके पूरे मुल्क में भी वैसे काम कर रही है, जॉब्स कर रही है, लेकिन इंशाल्लाह इसको एसोसिएशन को हम और मजबूत बनाएंगे। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इसको वेलफेयर एक बनाया जाए। एबरटूनिस फाउंडेशन की बातें चल रही हैं, उसके प्रोजेक्ट्स में कुछ वेलफेयर प्रोजेक्ट्स होंगे स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल के लिए, और कुछ एबरटोनियन जिनको हेल्प की ज़रूरत है उनके लिए, स्टाफ के लिए। तो इंशाल्लाह देखिएगा कि अगले साल तक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हम और करना चाहेंगे। सेशन अपने 11 बंदे पूरे करें। ये आपके 14 बंदे में से 11 करें। अभी नहीं है। थोड़ा रसा छोड़ो, थोड़ा रसा रखते हैं गेट वालों, रसा छोड़ो ना यार।
सपना किसी का मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। अच्छा, एक बात बता दीजिए मुझे, अपना इंटरेस्टिंग वाक्य शेयर करना चाहती हैं। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। 1984 में जब हमारी नई नेशन की हम यहाँ आए तो मिसेस साबिर को याद होगा, शगुफ्ता को, फर्स्ट टाइम उनके घर हम गए और उनसे हमारी बहुत ज़्यादा दोस्ती हुई। हमारा रूटीन ये था कि हम रोज़ाना रात को खाने के बाद वॉक करते थे और काफ़ी आधा घंटा वॉक करते थे यहाँ पर, ये बाहर रोड पर। एक दिन क्या हुआ कि हम लोग वॉक कर रहे थे, तो वॉक करते करते अचानक हमारे साथ कोई और खातून भी थी, मुझे याद नहीं वो कौन थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि रात को यहाँ भूत निकलते हैं तो ज़रा कि हम जल्दी घर चलते हैं और वो आमतौर पर सफ़ेद कपड़ों में नजर आते हैं। तो अब वो ज़हन में बात तो बैठ गई। इत्तेफाक से उस दिन 2 बोर्डर्स वो हाउस से भागे हुए थे और यहाँ दरख्त पे छुपके बैठे हुए थे। तो जैसे ही हम ऐसे वॉक करते करते यहाँ तक पहुंचे, उन्होंने एक जोर की चीख मारी और चीख मार के दरख्त से नीचे छलांग लगाई। हम समझे कि भूत आ गया। हमने फौरन घर की तरफ दौड़ लगे और घर पहुंचे तो हम बस कैसे शराब पी गए। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे साथ मौजूद हैं यासिर कुरैशी। हम इनको वेलकम करते हैं एबटाबाद में और इनसे व्यूज़ लेते हैं कि इनकी कैसी रही यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मज़ा आ रहा है। इत्तेफाक से एबटाबाद में आए हैं तो एबटाबाद का मौसम भी बड़ा अच्छा है और मुझे ये बताया जा रहा है कि ये इत्तेफाक नहीं है, यहाँ पे मौसम ऐसा ही रहता है और चारों तरफ जो नज़ारे हैं, जो खूबसूरती है, वो तो हमारे मुल्क की और हज़ारा की और एबटाबाद की वो तो हम सब देख ही रहे हैं। कमोबेश कोई 6 साल का वक्फ़ा आया, बहुत सी वजूहात थी। ज़लज़ला उसकी वजह थी, मुल्क में फैली हुई बेचैनी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये सब अवामिल थे, लेकिन साथ ही साथ कुछ हमारा अपना भी डिस्कनेक्ट था। एसोसिएशन में जो कमरादरी हमेशा से एक बिल्डअप रही वो कहीं पे वीक हुई, जिसकी वजह से हम इसको उस तरह से नहीं चला सके जैसे 1986 ऑनवर्ड्स चला था। शायद उसका सबब ये भी है कि किसी एक नुक्ते पे या किसी एक ऑब्जेक्टिव पे हम शायद आज तक बहुत क्लियर नहीं थे। ऑब्जेक्टिव्स तो थे एसोसिएशन के, थे, कोई एसोसिएशन बगैर ऑब्जेक्टिव के काम नहीं करती, लेकिन एक गोल तय करने की बात थी। मेरे ख्याल में इस रीयूनियन ने कुछ खदोखाल उस गोल के वाजे किए हैं, कोई सूरत वज़ह हुई है, हमें ये बखूबी अंदाज़ा हो गया है कि हमें जाना कहाँ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मेजर सईदुल्लाह खान है। I belong to चार सदा। I passed my FSC with flying colors और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मुझे अच्छी जॉब मिली। I've been selected for the army. I'm now serving in the army as a major और इंशाल्लाह I'll be मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं अपनी औलाद को भी इसी स्कूल में पढ़ा सकूं और मेरी इस स्कूल के साथ बहुत लंबी एसोसिएशन रही है 85 से लेके आज तक और मेरी कोशिश रही है कि मैं तकरीबन तमाम रीयूनियंस को अटेंड करूं। जितने भी ओल्ड एबटोनियन उनके साथ मेरे हमेशा इंटरेक्शन रहा है थ्रू टेलीफोन मेल किसी तरीके से भी और मुझे आई फील वेरी प्राउड टू बी हियर। थैंक यू। बहुत अच्छी यादें वाबस्ता हैं। उस वक्त तो बहुत छोटे थे हम और हमारे जो साथीदार थे उनके लिए हमेशा दुआएं निकलती हैं। ऐसे लग रहा है कि हम दोबारा यंग हो गए हैं और वही दौर में जो छोटे थे हम यहाँ पे किस तरीके से हम सेबों के यहाँ पे बाग थे तो रात को हम सेब चोरी किया करते थे, किस तरीके से एक दूसरे के पिलो फाइटिंग होती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज़ आसिम सुलेमान। I am from the 1968-75 batch. I studied in the school for 3 years, from 70 to 1972. I have very good memories of this institution. I think one of the best institutions in the country and one of the best institutions that I have ever been to.
मैं यहाँ से मैट्रिक के बाद चला गया था, उसके बाद मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन की एंड माई मेमोरीज विद एबटाबाद पब्लिक स्कूल हैव ऑलवेज बीन वेरी फॉन्ड एंड दे हैव बीन द गोल्डन पार्ट ऑफ माई पास्ट लाइफ. It is a great occasion to be here when we are gathered, and especially with my own classmates who are here, and we are about 20 of them, and we've had a very good evening, and it's very nostalgic to be in Abbottabad and especially to be back in the school. ये मोज़स नाज़रीन ग्रामी, ये जो इस वक्त एबटाबाद अलुमनाई रीयूनियन हो रही है, 6 बरस के बाद हो रही है, और मुझे बेइंतहा खुशी अपने जुमला अलुमनाई हजरात को देखते हुए हो रही है. इवन लास्ट नाइट आई मेट वेरियस फेसेस, द फेसेस दैट हैड गॉन डिम इन माई मेमोरी. तो मुझे उनसे मिलकर सडनली मुझे अपना सारा पास्ट रिफ़्रेश करने का मौका मिला है. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म इन देम लास्ट नाइट, एंड इवन एट दिस मोमेंट आई कैन सी बेहद नाकाबिल बयान किस्म का जज्बा. एंथुजियाज्म के बारे में ग्रीक एंशियंट्स का एक कहना था कि इट इज़ the enthusiasm that signifies God in us. अगर उसी को मैं उसी जज्बे को अगर मैं अपने अल्फाज में बयान कर लूँ, I can say that this enthusiasm signifies in us APS in us. तो बेइंतहा जज्बा देखने को आ रहा है, और इन दोस्तों के अंदर अपने इंस्टीट्यूशन के लिए जो लव है, जो अफेक्शन है, जो अटैचमेंट है, वो काबिल दीद है. कीप द APS फ्लैग फ्लाइंग हाई. आज हम उसी माहौल में और उसी टाइमिंग्स में अपने स्कूल को हमने ज्वाइन किया जिस तरह हमने 1979 में मैं फ़र्स्ट टाइम आया, और मेरी फीलिंग्स मेरा ख़्याल है मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पुराने उसातिज़ा मेरे कुलीग्स जो मेरे क्लासमेट्स थे, मेरे सीनियर्स थे, उनको देख के यकीनन जो मेरे दिल के अंदर खुशी की वो लहर है उसको मैं बयान करने से कासिर हूँ. इट्स अ वंडरफुल बीइंग हियर एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू योर मीडिया कि जिन्होंने इतनी एफर्ट की है और आप गाए बगाए हमारे फंक्शंस को कवर कर रहे हैं. There is a message, a simple message in life, one which I take from this school, जो मैं यहाँ से लेके जाता हूँ. It's nice to be important, but it is important to be nice. मकसद ये कहने का है कि being a good human being, एक अच्छा इंसान बनना, and that's what this institution has taught me to do. And I'm very happy that I have been asked to say something about APS. मेरी उमर फारूक से कुछ अर्सा पहले बात हुई थी और मुझे बेहद खुशी हुई, और मैं उसके बाद उससे कांटेक्ट में नहीं रहा. आज बहुत अच्छा फंक्शन हो रहा है और ये कुछ 6 साल के बाद है. सब खुश हैं, लेकिन मुझे इन सब से ज़्यादा खुशी ये है कि मैं अपने तमाम स्टूडेंट से इस वक्त मेरी मुलाकात हो रही है. तो कल रात मैंने तकरीर में भी यही कहा था कि मैं ओल्ड बॉयज़ नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर मैंने इनको ओल्ड कहा तो फिर मैं तो ओल्डेस्ट हो जाऊँगा. तो मैंने इसलिए नहीं कहा था. मुझे बेहद खुशी हो रही है और मैं आपके इस चैनल का ममनून हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, मैं उन सबको यहाँ से मुबारकबाद पेश करता हूँ. हमारा सबसे बड़ा प्यार है APS से. हम चाहते हैं जब भी मौका मिले यहाँ आएँ, पुराने टीचर्स से मिलें. लाइन शेयर इनका तो कराची से आपको पता है यहाँ आना कितना मुश्किल है, मगर फिर भी मैंने 86 से हर फंक्शन यहाँ अटेंड किया है और कोशिश की है कि अपने दूसरे भाइयों को भी इस आयोबा में
सर्कल में दाखिल करूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं कामयाब भी हूँ। मैं काफ़ी अरसे के बाद तकरीबन 7-8 साल के बाद आज स्कूल आया हूँ और ये रीयूनियन भी बहुत अरसे के बाद हुई है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं कराची से आया हूँ, कराची में रहाइश है मेरी। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लास्ट नाइट भी हुआ, बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे, वहाँ पे 1000 के करीब लोग थे। अपने पुराने क्लास फेलो से मिले, बहुत अच्छी गपशप हुई एंड इट वाज लाइक वेरी नाइस। मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया एंड द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक्ड वाज दैट माय हस्बैंड इज़ रियली हैप्पी। इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग वापस आना उस जगह पे जहाँ से यू लर्न सो मच एंड इट्स अ होल न्यू सिटी। इट्स लाइक अ सिटी इटसेल्फ। आई एम आल्सो flabbergasted to see such beautiful place and it's excellent. मेरा नाम माजिद हुसैन सिद्दीकी है और मैं उन 9 रत्नों की टीम का वाहिद मेंबर हूँ जो अब भी सर्विस कर रहा है और तीसरी नस्ल को पढ़ा रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब ये रियूनियन होती है। वी हैड अ वेरी गुड टाइम उन बच्चों के साथ, क्योंकि सारा वक्त जो है उनको पढ़ाने में, उनको ग्रूम करने में और उसी में ही हमारा निकल जाता था और वही हमारा सरमाया है और वही हमारी मेमोरीज भी हैं। बहुत अच्छा है ये, एक काफ़ी नई चीज़ है, काफ़ी अरसे बाद हुआ है ये। काफ़ी सारे पुराने ओल्ड बॉयज़ आए हैं, उनको मुलाकात हुई, अच्छा लगा है। ऐसा होना चाहिए रेगुलरली तो नहीं, हर साल पुराने बॉयज़ इकट्ठे होते हैं, मज़ा आता है, मिलके गपशप होती है। हाउस के मैं भी करेंटली 2nd ईयर में हूँ, तो जितने भी पुराने भाईजान गए हैं उनसे मुलाकात हुई है। मेरे फादर एबटोनियन हैं, उनकी टीचर से मुलाकात हुई है, उनके क्लासमेट से मुलाकात हुई है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, ये होना चाहिए इस तरह का। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई फादर कि ही इज़ एबटोनियन और हर साल होना चाहिए ये। असल में बहुत एक टाइम के बाद हुआ था, आफ्टर 3 इयर्स के बाद ये हुआ है, लेकिन होना चाहिए। क्या नाम है, इतने पुराने फ्रेंड्स आपको मिलते हैं और हम तो किड्स हैं, लेकिन हमें फिर भी वो होता है क्यूरियोसिटी कि अब हम भी जाएं, इस तरह करें। विश आई वाज अ बॉय तो मैं इधर ही आती ज़रूर, और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं थी। रियली नाइस अरेंजमेंट। आई लव्ड द म्यूजिकल नाइट एंड द डिनर, although some people didn't get to eat much, but it was nice, and I would like to say the band was really nice and it was amazing music. Today we are like standing in front of this like hockey ground, missing our buddies, especially Umar, Especially Umar, we are missing you a lot. And Kazi, you have done a very great job. Kazi, all our love for you. And our eyes are full of tears, missing you guys. And like we went down to Nishtar House, we saw everything. Everything is the same apart. Like I mean, we have grown old, we have got white hair. And last night was very good. Assalamu alaikum. Umar, I just only want to say it's a great job done by you that you have launched this site Hazara.com. It's a very blessing. It's a very great blessing for us that you have launched this, and we are enjoying. Now this is a great event. We are missing all you people like Umar. We are missing you all. Especially Umar, we are missing you a lot because you have done a very job at this event. You must come and you must enjoy. But unfortunately, you are not here, so we are missing you a lot. Another thing, we also like to tell Mr. Adnan Tariq, Shujat Ali Kiani, Ali Rana, we all are missing you. We all are missing you. That's a great job done by you people. We appreciate you and we are missing you. Thanks. एओबा एबटाबाद चैप्टर तकरीबन 1980 से शुरू हुआ था. It came into inception in around early 80s. और उसके बाद से एओबा की बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं. एओबा का एक प्रोजेक्ट है जो एबटाबाद का है, उसमें एबटोनीज़ मेडिकल एसोसिएशन है जिसके चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ वान हैं. मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ और बहुत सारे लोग जो लोकल हैं यहाँ एबटाबाद के बड़े सीनियर एबटोनियंस उसको हेड कर रहे हैं. तो एओबा एबटाबाद का जहाँ ताल्लुक़ है वो तकरीबन ये हमने 1-2 महीने में अपने आप को रीऑर्गेनाइज़ किया है. तो इस इदारे ने जिस तरह हमारे हर जगह तालीम तो मिलती है आपको, लेकिन इस इदारे ने जिस तरह हमें तरबियत दी है तो वो हमें औरों से बिल्कुल मुनफरद कर देती है. तो आई थिंक एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, एक बहुत बड़ा इदारा है और इससे वाबस्ता जो यादें हैं वो तो इतनी हैं कि अगर उस पर बात की जाए बहुत होगा. लेकिन मैं ये कहूँगा कि इतना बड़ा फंक्शन, इतना इसमें जो लोग जिस तरह पार्टिसिपेट हुए हैं, जिस तरह कि उन्होंने किया है, आई थिंक कि ये बहुत बड़ी एसोसिएशन बन जाएगी. और पाकिस्तान में बहुत सारे तलबा की तंजीमें काम कर रही हैं, लेकिन एओबा का अगर आप किसी भी उससे कंपैरिजन करें तो आई थिंक बहुत डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम.
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आसिफ सीमाब है और आप इस वक्त एबटाबाद पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के कैंपस में हैं। इस कैमरे और इस चैनल के तवस्सुत से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे एबटोनियंस एसोसिएशन ने तकरीबन 6 साल के वक्फे के बाद रीयूनियन का एहतमाम किया है। तकरीबन 30 साल पहले मैंने इसी इदारे से मैट्रिक किया था और आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें इस इदारे का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो तालीमी हवाले से है और चाहे वो ड्रामेटिक्स के हवाले से है, शो बिज़नेस के हवाले से है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मैं एबटोनियन हूँ 1965 से लेकर 1971 का। बेसिकली क्योंकि मैं कोई बहुत लायक नहीं था स्टडीज़ टाइप जो कहते हैं, और इसलिए सिविल सर्विसेज का मैंने ऑप्शन ली अपनी सोशल साइंसेस की कंप्लीशन के बाद। और अभी मैं 1981 से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पाकिस्तान में एक चीफ बजट और जो कलेक्शन सिस्टम्स हैं उनको देख रहा हूँ। एओबा मेरा एक पैशन रहा है, एओबा के साथ मेरी बहुत बड़ी कमिटमेंट, बहुत बड़ी डेडिकेशन है। और अगर मैं ये कहूँ कि पिछली शाम की जो फंक्शन था उसमें मेरे जनरल सेक्रेटरी ने ये कहा कि अगर ये देखा जाए कि एक वो एबटोनियन जिसको तमाम पब्लिक स्कूल एबटाबाद से फ़ारग होने वाले जो लोग हैं वो जानते हैं, तो वो सरदार मुनव्वर होगा। मैं उनका मशकूर हूँ उसके लिए। और मैं ये बताऊँ कि मुझे जो और मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि तकरीबन 13 साल में वैसे प्रेसिडेंट रहा एबटोनियन बॉयज़ एसोसिएशन का, और 3 साल जो एक रिकॉर्ड है सेंट्रल गवर्निंग बॉडी का प्रेसिडेंट रहा। सेंट्रल गवर्निंग बॉडी के लिए जितनी भी कोशिशें, जितनी भी चीज़ें थी, मैं समझता हूँ बहुत से लोगों ने उसके लिए काम किया है। लेकिन मेरा एक दीवानी का ख्वाब आप उसे कह लें, एक पागलपना कहें, या आप कुछ भी कह लें उसे, लेकिन उसके लिए जितना भी काम मुझसे हो सका इससे पहले मैंने किया और मैं करता रहूँगा। मेरे जहन में था, मैंने पिछले साल ये सोचा था और एक एबटोनियन में कहा भी था कि मैं इंशाअल्लाह अगले साल रीयूनियन जो इंटरनेशनल लेवल की होगी वो करवाऊंगा, जो होगी इसकी गोल्डन जुबली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब अर्थक्वेक्स हुए और ज़लज़ले से 2008 में जो हॉस्टल्स की हमें नुकसान हुआ, वो क्योंकि अंडर रिपेयर थे, इसलिए आज दिन तक हॉस्टल्स ठीक ना हो सके। उसकी वजह से हम इस पोजीशन में ना पहुंच सके कि हम इंटरनेशनल रीयूनियन करें। Here from Chicago, and it's been a wonderful experience for me. This is not the first Ebitonian event that I've experienced. I've attended quite a few over the years, but since the past 2 years I moved to Chicago, and so it was like a nostalgic event for me this time, and it was one of the biggest events that has been held so far for the Ebitonians. And I think everybody is having a great time. As you can see, there's so many activities that are going around. Yesterday there was a concert and a dinner. There were a lot of prizes that were given out. And today there was lunch, and there was a cricket match. There were activities for the children, and there was a small show that was going on for the ladies as well. So everybody was preoccupied. Yes, tug of war was also, yes, it's also the part. Yes, that was also one of the games. So every age group was here and was having a ball of a time. So I think that's the most important part, to engage each and every individual at an event. All
So, do you expect this thing will happen again and will more energetic and stuff like that? You know, with more energy, people's gonna celebrate because they were expecting, and 400-500 guys. You know, but there are more than 1,200, 1,500 people who have joined. So next time in the coming year, the Golden Jubilee they're expecting. So do you think this would be? I think we need to spread the word about the Evertonians. I'm sure there are so many people all around the world who have no idea about this association. So we need to get in touch with all these people so that they can come around and participate in this event. Even for this one, people have traveled from all over the country to be part of this event. I know people who've come by road from Karachi, which is not that easy in this hot weather, but it shows their enthusiasm. जी मेरे हस्बैंड थे पाकिस्तान टाइम के एडिटर और टीवी पे भी वो रहा और मेरा एनजीओ से ताल्लुक़ है मशहल के अंदर हूँ मैं हमारे मिसेस अजीम है जनरल अजीम की वाइफ प्रेसिडेंट हमारी दूसरे माशाल्लाह एबटाबाद पब्लिक स्कूल से मेरे साहबजादे जो जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ के शमून हाशमी मैं उनकी मदर हूँ और ये माशाल्लाह पब्लिक स्कूल का भी और एक माँ को क्रेडिट बहुत जाता है आप जब अपने बच्चे को भेज देते हैं तो मेरा तो एक ही बेटा था तो मैंने बहुत से स्कूल छाने कि मैं कैनेड भी गई एचिसन भी गई और मैं हसन अब्दाल भी गई मरी भी गई मैं लेकिन मुझे ये कि सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ के माइनॉरिटी किड्स यहाँ के बहुत पसंद आए यहाँ पे उन दिनों सर तारिक हुआ करते थे प्रिंसिपल तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कोऑपरेट किया लेकिन मैं उसके अंदर ये कि मैं हर जुमे को अपने बच्चे से मिलने के लिए ज़रूर आती थी और बहुत सी माओं ने मेरी इस बात की शिकायत भी की तो सर तारिक ने एक दिन मुझे कहा कि प्लीज़ ज़रा आप मेरे से आके मिलें तो मैं उनके जब ऑफिस गई मैंने कहा जी बताइए तो उन्होंने कहा यहाँ माओं को बहुत शिकायत है कि आप हर हफ्ते आती हैं तो बच्चे सारे डिस्टर्ब होते हैं और बच्चे और होते हैं तो मैंने उनसे कहा कि जी आप उन माओं को सबको बुलाएं तो मैं भी मीटिंग करना चाहती हूँ कि माएँ बच्चों के साथ ज़रा क्लोज़ रहें और बच्चों को भी पता रहे कि उनके पीछे कोई हाथ है तो बेटे एक तो ये बात है कि आप अपने बच्चे को इग्नोर ना करें उसके सरपरस्ती बहुत ज़रूरी है कहाँ उठ रहा है कहाँ बैठ रहा है तो ये सारी चीज़ें आपको बड़ी काउंट करती हैं मेरा ताल्लुक़ जी कुछ खाना पकाने से भी है मैं कुछ क्लासें भी लेती हूँ और मेरी हॉबी है माशाल्लाह तो और कोई यही सारी चीज़ें जो हैं एक औरत के लिए मेरा ख़्याल है मैं अपनी बहनों को और बच्चियों को सबको यही पैगाम दूंगी कि वो अपनी पढ़ाई एजुकेशन के साथ काम के साथ अपने घर को मिस ना करें सबसे पहले जो है उनके बच्चे और उनका घर है तो ये सारी चीज़ें देखते हुए कि बर्गर हाउस और मैकडॉनल्ड सिर्फ अपने घर को ये ना बनाएं बल्कि अपने बच्चों को और शौहर को क्लोज़ करने के लिए सबसे बड़ा ये है कि उनको अच्छे अच्छे खाने पकाएं और घर का सुकून सबसे ज़्यादा My name is Tariq Mahmood and I joined the school in 1963 did my FSc in 69 and I spent the most wonderful time of my life 6 years here. I think right to say that there was the golden period of my life with character building, which is also the motto of the school. Character is destiny. We couldn't understand it then, but in life later on we got to know that is the ultimate thing in life. Our principal, Mr. Rahman, was an institution, so were our teachers, and I think wonderful guidance. I was the in the school. I was also the hockey captain of the school. अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? तैमूर जावेद। आप कौन से सेशन में यहाँ पे रहे हैं सर? 2004 to 2006. Alright. So any participation in the sports or any activity you have done? Yeah, I was the best swimmer. जितने भी मैंने years गुजारे हैं यहाँ पर, I was the best swimmer of APS. इकबाल हाउस में था मैं, and whatever I am today, just because of APS. Right, that's very nice. You appreciate. How you feel about this event? How it's organized, and what you're feeling? You met a lot of people. You met a lot of your teachers and your class fellows. So how do you feel? I feel really good to see all my classmates, all my batchmates, teachers and all principal, all सबसे हम मिले हैं, and I really feel good.